لیکن ظاہر ہے یہ جو جدید ترین سیٹ اپ ہے، جس سیٹ اپ کے تھرو ہم لوگ آپ لوگوں سے اس ویڈیو لنک کے اوپر آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کو کنیکٹ ہوتے ہوتے ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے. تو جناب 15 منٹ یہ سیٹ اپ ہمارا کھا چکا ہے ابھی تک کہ ہم نے لائیو جو ہے وہ کب جانا ہے. برحال یہ اویس آج میرے ساتھ موجود ہیں اور اویس ہی بتائیں گے کہ یہ کس وقت لائیو جانا ہے اور اس کی لائیو کی ٹائمنگ کیا کیا ہے. لیکن میرے پاس ابھی تک ویڈیو شو نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ لوگ مجھے اس لائیو ویڈیو سیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ لوگ مجھے اس لائیو ویڈیو سیشن میں دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائے گا. آئیے جناب ایک دفعہ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام دل کے افسانے میں. اور پروگرام دل کے افسانے میں دوستوں آپ کو ہمارا ساتھ شب کے پورے 2 بجے تک رہا کرتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب سے چند لمحوں کے بعد ہم دل کے افسانے، جہاں پر آپ ابھی تک ہمیں سنا کرتے تھے، اب آپ دل کے افسانے جو ہیں آپ دل کے افسانے میں ہمیں دیکھ بھی سکیں گے. تو جناب ہمیشہ آپ کی اور ہماری ایک ادھوری ملاقات ہوا کرتی تھی، آدھی ملاقات ہوا کرتی تھی. آج الحمدللہ دیکھیے بہت دنوں سے آپ شکوہ کر رہے تھے نا کہ آپ نے لائیو ویڈیو سیشن جو ہے اس کا انعقاد نہیں کیا. تو جناب آج میں آپ سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں. آپ مجھے دیکھ بھی سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ لوگوں کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے کامنٹس آئیں گے اسی لائیو ویڈیو سیشن پہ، جتنے زیادہ آپ لوگوں کے شیئرز آئیں گے اور جتنا زیادہ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو جناب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کے فیس بک پیج پہ. اور یہ سنو ایف ایم نے ایک نئی ریت، ایک نئی روایت پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے اور دنیا جہاں میں سنو ایف ایم جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیٹ کے ذریعے تو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے جناب اس روایت کا آغاز کیا. ہم لوگوں نے یہ روایت ڈالی کہ آپ لوگ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں. ایک زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے مذاق کیا کرتے تھے، یار آپ کا ہم نے ریڈیو پہ پروگرام سنا لیکن آپ نظر نہیں آ رہے. تو جناب اب ہم نظر بھی آتے ہیں ریڈیو پہ. اب ریڈیو سنائی بھی دیتا ہے اور اب ریڈیو دکھائی بھی دیتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ذرا ابھی ٹیون کیجئے سنو ایف ایم 89.4 کا فیس بک پیج پہ جائیے، اس کو لائک کیجئے. وہاں پر ریڈیو سنائی بھی دے رہا ہے اور وہاں پر ریڈیو دکھائی بھی دے رہا ہے. تو دوستوں جو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے جوں پیغامات اور جوں آپ لوگوں کے میسیجز آتے چلے جاتے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا چلا جاتا ہوں. ارنش ڈول تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. اور ارنش ڈول ہمارا پروگرام کہاں سن رہی ہیں یہ نہیں بتایا. برل سانول ارائیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد رضوان علی تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور محمد رضوان علی ہمارا پروگرام کہاں سن رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے. آئمہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمل ہمارا پروگرام سن رہی ہیں. اور اسماعیل سندھو تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. حفصہ سلیم تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. عامر علی سمیجو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عبیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب جوں آپ لوگوں کے کامنٹس میں، آپ لوگوں کے شیئرز میں، آپ لوگوں کے لائکس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ہی جناب میں آپ لوگوں کی باتیں اور آپ لوگوں کے پیغامات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتا چلا جاؤں گا. تو جناب یاد رکھیے گا کہ سنو ایف ایم 89.4 کے فیس بک پیج پہ ہمارا پروگرام دل کے افسانے سنا بھی جا سکتا ہے. اور اب ہمیں آپ سنو ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ رستم علی جمالی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ایشو خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا آیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت اللہ ان کا نام ہے، سرگودا میں سن رہے ہیں. اور رابی فاروقی ہمارے ساتھ ہیں. سانول تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ندیم قاضی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. روشان دین ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ شاہد قریشی ہمیں سن رہے ہیں، وعلیکم السلام. اور ساغر قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دل کے افسانے کی، یعنی کہ محبتوں کی اس محفل میں شامل ہونے کے لیے. تو اس کے علاوہ آپ ہمارے پروگرام میں دوستوں پروگرام دل کے افسانے میں آپ بذریعہ لائیو ٹیلی فون کالز بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ بہت آسان ہے اور بارہا یہ طریقہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر 111-111-894 ہے. راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ مجھے کال کر رہے ہیں یا اپنے موبائل فون سے کال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں 051 یعنی کہ 051 آپ پہلے ملاتے ہیں اور اس کے بعد 111-111
894. तो जनाब सुनो एफएम की इस लाइव ट्रांसमिशन में जो कि आप मुझे सुन तो रहे हैं, आप हमेशा मुझे सुनते हैं, लेकिन आप मुझे देख भी रहे हैं, तो जनाब इसमें आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सुनो एफएम 89.4 के फेसबुक पेज पे हमारा स्टेटस लाइव स्टेटस मौजूद है, जिसको आप लाइक कर सकते हैं, इस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपके और हमारे दरमियान जो राबिते का नंबर है 111 111 894 है। ये स्क्रीन पे भी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा ये लाइव टेलीफोन नंबर जो कि स्क्रीन पे मौजूद है 05111111894। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में हम फर्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें किसने याद किया और हमें कहां से कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपना नाम बताइए, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो एफएम 89.4 की इस बराह रास्त नशरियात में। वालेकुम सलाम। फ्रॉम हैदराबाद। सांवल आराई फ्रॉम हैदराबाद। सांवल कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आपने मुझे मतलब लाइव देख लिया? जी बिल्कुल। मैं तकरीबन कोई 3 मोबाइल से कॉल मिला रहा था कि आज जो है ना कॉल मेरी ही लगे। अच्छा सांवल, एक बात बताइए कि आप की कोई शॉप तो नहीं है और कोई इजी लोड तो नहीं करते आप? जी नहीं, बस वो अबू का मोबाइल था, भाई का मोबाइल था और अम्मी का था। अक्सर मैं 3 से 4 मोबाइल उन लोगों के पास देखता हूँ जो कि इजी लोड का, इजी पैसा का, इन चीजों का बिजनेस करते हैं ना, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर वगैरह का। तो ये बताएं कि हैदराबाद का मौसम कैसा है? हैदराबाद का मौसम तो दिन में गर्मी होती है और में थोड़ी ठंड होती है और बारिश इस सर्दी में जो है ना बारिश नहीं हुई, ये अफसोस है। अच्छा, इस सर्दी में बारिश नहीं हुई और खुश्क मौसम है इस वक्त, आप ये ऐसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और मैं पेशावर भी आया था और तकरीबन कोई खाने वाल के करीब आपका प्रोग्राम सुन रहा था। आपका जो आपको कॉल मिलाई तो आपकी कॉल नहीं मिल रही थी। ओके, और ये बताइए कि पेशावर खैरियत से आए थे आप? जी वो कजन की शादी थी तो उसकी शादी में आया था। उसके और लिए बारात जो है हम ट्रेन में लेके गए थे। अरे वाह, फिर तो खूब एंजॉय किया होगा। हाँ जी, और मैंने भावलपुर स्टेशन देखा तो वो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत स्टेशन, यकीन कीजिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहावलपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। जी चलें सांवल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सांवल हमारे मुस्तकिल सामे हैं और सांवल हमारा प्रोग्राम सुनते हैं हैदराबाद सिंध में। और इस वक्त हम बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में एक और कॉलर की जानिब। हमें किसने कहां से याद किया, हमें किसने कहां से कॉल किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ, अपना नाम बताइए। इकबाल बात कर रहा हूँ थरपरगढ़ से ना। ये प्लीज हैंड्स फ्री उतार दें, जो आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई है ना, ये इकबाल बात कर रहा हूँ थरपरगढ़ से। इकबाल साहब, आपने शकरगढ़ से कॉल की और ये बताइए कैसे मिजाज हैं? शकरगढ़ का मौसम कैसा है इस वक्त? थरपरगढ़। क्या कह रहे हैं आप? थरपरगढ़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। एक छोटी सी गुजारिश मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा, और वो छोटी सी गुजारिश मेरी ये है कि जब आप लोगों की लाइव कॉल कनेक्ट हो जाती है हमारे साथ, तो उस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन्स में जो आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई होती है उसको निकाल दिया करें, क्योंकि हैंड्स फ्री वो हिलती रहती है और झूलती रहती है वो हैंड्स फ्री, इसलिए आपकी आवाज़ जो है प्रॉपर नहीं आती। और बाज़ औक़ात वो बहुत करीब हो जाता है, हैंड्स फ्री का जो माइक होता है, माइक्रोफोन, वो बहुत नज़दीक हो जाता है, तो वो फिर आवाज़ को ब्लास्ट कर रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस हैंड्स फ्री को उतार दें। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडियो सेट की आवाज़ जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया करें, क्योंकि आप लोग फिर मेरे सवाल या मेरी गुफ्तगू का जवाब रेडियो को सुनने के बाद दे रहे होते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम में एक और कॉलर की जानिब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा, कौन है हमारे साथ? साहिल परदेसी बात कर रहा हूँ। साहिल परदेसी? जी हाँ जनाब। अच्छा साहिल परदेसी, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने हमें कॉल कहाँ से की है? सर मैंने कॉल की है सखर से। सखर से कॉल कर रहे हैं, वेरी गुड। जनाब अच्छा साहिल, ये आपका कोई कलमी नाम है साहिल परदेसी, या असल नाम आपका यही है? नहीं, वैसे मेरा नाम साहिल है, परदेसी मेरे तखल से। तो शायरी पसंद है आपको? जी हाँ।
चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इजाजत हो तो मैं एक दो लाइनें सुनाता हूँ। अरे जनाब, भरपूर इजाजत है, भरपूर भरपूर इजाजत है। जी हाँ। निगाहों में छुपा प्यार नजर आता है, निगाहों में छुपा प्यार नजर आता है, प्यार नजर आता है, वाह, चेहरे में बसा खुमार नजर आता है। क्या कहना, कोई क्या कहना। गौर से देखे उस चेहरे को है साहिल, कोई गौर से देखे उस चेहरे को है साहिल, उस चेहरे में छुपा बेवफाई का नकाब नजर आता है, उस चेहरे में छुपा नकाब नजर आता है। बहुत अच्छा भाई, बेवफाई का नकाब नजर आता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपकी दुआओं आपका की शो जरूरत। बहुत अच्छा है सर। मैंने आज कोशिश की काफी दफा कि आपके प्रोग्राम में आज कॉल मिल जाए। हम्म। तो आज आपकी कॉल आखिरकार कनेक्ट हो ही गई। हाँ जी 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाहिश पूरी हो गई। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बरल साहिल परदेसी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया, आपने हमें कॉल की। जल्दी से बढ़ूंगा एक और कॉलर के जाने पर, देखते हैं कि पाकिस्तान के किस खूबसूरत हिस्से से हमारे प्रोग्राम में इस वक्त कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा, कौन है हमारे साथ? मैं फिरोज बात कर रहा हूँ अतर रजी साहब। कौन बात कर रहे हैं? फिरोज बात कर रहा हूँ, फिरोज अवान बात कर रहा हूँ। फिरोज अवान साहब, कहाँ से कॉल किया आपने हमें? जी फिर मैं अतर रजी साहब खानापुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, खन्ना पुल से। जी जी मतलब आप तो बड़े नजदीक से कॉल कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। जी, आपके पास ही होता हूँ, मैं आपके पास ही रहता हूँ और तंदूर का काम करता हूँ, अवाम की खिदमत कर रहा हूँ माशाल्लाह। और दिन को रोटियां पकाता हूँ और शाम को जब आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत सुकून मिलता है और बड़ा मजा आता है। अरे वाह, और मेरे दिल की जो थकावट होती है ना, जिस्म की थकावट, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। आपकी शायरी मुझे पागल बना देती है। अरे 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 अरे। अच्छा, मुझे ये बताइए फिरोज, एक बात बताइए, आप माशाल्लाह तंदूर में रोटियां लगाते हैं? हाँ? और जी। अच्छा, वैसे कभी आपने काउंट किया कि आज के दिन मैंने इतनी रोटियां लगाई होंगी? जी अतर रजी साहब, वो 600, 700, 800 माशाल्लाह, करीब करीब ही लगा लेते हैं माशाल्लाह। और आज के दिन में आपने को तकरीबन कोई 700-800 रोटियां जरूर लगाई होंगी तंदूर पे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रज़क नहीं होते हैं सारा दिन और बड़ा मजा आता है जब मैं आपका शाम को प्रोग्राम सुनता हूँ और मेरे दिल की सारी थकावट दूर हो जाती है। बड़ा सुकून आता है मुझे आपकी शायरी सुनते हुए। और अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे और हमारे पाकिस्तान के आप हीरो हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी। मुझे ये बताइए कि जाहिर है आप बहुत अरसे से इस काम से वाबस्ते हैं और बड़ी हिम्मत वाला काम है। हम तो आपको बताएं रोटी खा लेते हैं, लेकिन रोटी के पीछे, उस गोल रोटी के पीछे जो एक मेहनत होती है वो आप लोगों की होती है। तो मैं तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस प्रोग्राम से, कि गर्मी हो सर्दी हो, आप खून पसीना एक करके जो है वो हम लोगों को रोटी मुहैया करते हैं। हमेशा जीते रहे। जी यार रजी साहब, असल में बस सुकून होता है और रज़क का काम होता है, साफ सुथरा रहना पड़ता है, क्या उनका लंगर पकता है 24 घंटे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जी यार, असल बेसिकल में मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं, माशाल्लाह। जी यार, जहाँ बस मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। जी। असल में आपको प्रोग्राम में सुना करता था अपना जागता पाकिस्तान में। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान सुना करते थे आप? हाँ जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान जागता पाकिस्तान में आपका प्रोग्राम हुआ करता था। और अतर रजी साहब, फिर आपसे कबल कोई पहले मुलाकात हुई थी 2017 में। अच्छा, आपकी और मेरी मुलाकात हो चुकी है मतलब? जी हाँ, 2017 में पहले मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद आज मुलाकात हुई है। अरे वाह, क्या बात है, क्या कहने। तो मेरे लिए अतर रजी साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे। और असल में उसका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, इमरान अली मानी का प्रोग्राम भी सुनता रहता हूँ, आपका प्रोग्राम भी सुनता रहता हूँ। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं आप, आपकी आवाज, आपकी शायरी। फिरोज साहब, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, खैर खैरियत से रहें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मेरे लिए एक गजल होनी चाहिए गुलाम अली की आवाज में बस। चले, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि कुछ देर के बाद आपके लिए एक स्पेशल गजल जो है वो जरूर प्रोग्राम में प्ले की। गुलाम अली की आवाज में? जी, गुलाम अली।
जी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब फिरोज साहब जनाब इस्लामाबाद का जो इलाका है खन्ना पुल हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे। और अवैस आपसे गुजारिश है कि ये बिल्कुल ये जो फ्रंट वाला कैमरा है ना, इस वक्त बिल्कुल जो मेरी निगाहों के सामने कैमरा है, ज़रा इसी को थोड़ी देर एक्टिव रखिएगा। और क्योंकि ये इसका शॉट जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत उस लॉन्ग शॉट के। इसमें मैं खुद अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा हूँ इस वीडियो शॉट के अंदर। और इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए रखिएगा क्योंकि मैं अपने सुनने वालों की फरमाइश पे कुछ प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो दरख्वास्त कर रखी है, रिक्वेस्ट कर रखी है ये कलाम प्रोग्राम में मैं शामिल कर लूँ। उसके फ़ौरन बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो जनाब फिर एक दफ़ा दोबारा आप लोगों से बराह रास्त लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा। मैं अक्सर आप लोगों को कहा करता हूं कि घर से दूर रहकर परदेस का दुख, परदेस की बातें और वो तमाम सौगातें सिर्फ वही शख्स जान सकता है जो कुछ दिनों के लिए सही लेकिन घर से दूर जरूर रहा हो। और यकीन जानिए कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि घर मकान ये घर वालों से बनता है, घर वालों से बनता है, जहां पर एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे का खुलूस, एक दूसरे का एहसास और आपस में मोहब्बत चाहिए होती है। परदेसियों के हवाले से कहते हैं गुले नौखेज़ अख्तर, जो घर से दूर होते हैं, जो घर से दूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं। जो घर से दूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं। कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप छुप के रोते हैं। घरों को याद करते हैं तो फिर फरियाद करते हैं। मगर जो बेसहारा हो, घरों से बेकिनारा हो, उन्हें घर कौन देता है, ये खतरा कौन लेता है। और जरा सुनिएगा, तवज्जो की जरूरत है मुझे आप लोगों की। बड़ी मुश्किल से एक कमरा जहां कोई ना हो रहता, नगर से पार मिलता है, बहुत बेकार मिलता है। तो फिर दो तीन हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा तो सब कपड़े तो रह लेंगे बड़े सुख से। और जरा सुनिएगा, मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें, ऊपर से वो बंद कमरा, घुटन और हब्स का पहरा। कोई दिल में बिलकता है, कोई पहरों सुलगता है, जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान मिलता है। बहुत बेजान मिलता है। खुशी मादूम रहती है, फिजा मग़मूम रहती है। बहुत रंजूर क्यों ना हो, बहुत रंजूर क्यों ना हो, बड़े ही मजबूर क्यों ना हो,
اوائل میں مہینے کے سب اپنے خون پسینے کے جو پیسے جوڑ لیتے ہیں گھروں کو بھیج دیتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں اور اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اپنا دھیان رکھتے ہیں. بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں, بڑی خوش بخت گھڑیاں ہیں, یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. دوستوں یہ تھا کچھ پردیسیوں کا حوال جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. اور ابھی کچھ دیر اویس صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ان کی اجازت سے میں کچھ دیر اور آپ لوگوں سے مخاطب رہوں گا اس لائیو ویڈیو سیشن میں. اور میرے پاس ایک چٹھی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بلکہ میں اچھا ہوا آپ لوگ آج لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ بہت زبردست ایک خط میرے پاس ہے اور اس قوم کے جو جانباز بیٹے ہیں, کچھ بہادر سپوت ہیں, خاص طور پہ DHA 5 اسلام آباد کا جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ مجھے خط ضرور بھیجتے ہیں اور مجھے اکثر ان کے خط کا انتظار رہتا ہے. یہ چٹھی کا کلچر, یہ خط و کتابت جہاں پر بالکل ہی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ہم پروگرام کیا کرتے تھے دوسرے نجی FM ریڈیو سے, تو بے تحاشا مجھے خط ملا کرتے تھے, بے تحاشا لیٹرز ملا کرتے تھے, اس میں تحائف ملا کرتے تھے, پوسٹ کارڈز ملا کرتے تھے. تو اچانک سے جب سے یہ جدید سسٹم شروع ہوا ہے, یہ جدید سلسلہ کار شروع ہوا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب DHA 5 کے سیکیورٹی پہ مامور جو آفیسرز ہیں وہ مجھے خط لکھتے ہیں. DHA فیز 5 میں دوستوں جو یہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس میں کون کون موجود ہے؟ حوالدار عبدالغفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ حوالدار عبدالغفور صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سفیر احمد ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, چودھری بابر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, شکور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور HRL کے چاچا محمد رفیق بھی جناب اس وقت دل کے افسانے کی اس محفل کا حصہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. ہماری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام اور دعا. تو جناب DHA 5 کے جو سیکیورٹی سٹاف ہے پاکستان بھر میں سنو FM کو سننے اور دیکھنے والوں کو اور دنیا بھر میں سنو کو دیکھنے اور سننے والوں کو یہ دعائیں بھیجتے ہیں اور ان سب کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری سلام اور دعا. ایک شعر لکھ کے بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم میرے ہوتے ہو گویا, تم میرے ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کیا بات ہے آپ لوگوں کی جناب, چھا گئے آپ لوگ. اور جناب میں بھرپور کوشش کروں گا آج کے پروگرام میں. غلام علی خان صاحب کے غزل کی, ان کے کلام کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی ہے, تو مجھے کس کس نے اپنے کامنٹ سے نوازا ہوا ہے اس لائیو سیشن میں. جناب بہت سارے آپ لوگوں کے کامنٹس موجود ہیں. بہار شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. لنڈا جان ہمارا پروگرام سن رہی ہیں. رضا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. ذکی عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں اور سید حسین شاہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ رضا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جو بالکل آپ لوگوں کے جو نئے کامنٹس ہیں اس کے اندر کون موجود ہے, تو جناب جو آپ لوگوں کے کامنٹس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا چلا جاؤں گا. اس دنیا میں کب آئے, آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے, ذرا جلدی سے, میرے پاس 7 سے 8 منٹ باقی ہیں, 6 سے 7 منٹ 8 منٹ, جتنا جلدی آپ مجھے اپنی تاریخ پیدائش لکھ کے بھیجیں گے اتنا ہی جلدی میں آپ سے مخاطب ہوتا چلا جاؤں گا. ثنا تھینک یو ویری مچ, ثنا رضوی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. اور اسامہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور راولپنڈی اسلام آباد میں جو خاص طور پہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں اس کے اندر جناب یہ ایک بہت بڑا نام ہے. تو جناب اس وقت ڈاکٹر فاروق ناصر میرا پروگرام سن رہے ہیں, معروف ہومیوپیتھک کے پریکٹیشنر ہیں یہ, سید پور روڈ میں ہمارا یہ پروگرام سنتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ناصر صاحب بہت شکریہ. اور ڈاکٹر فاروق ناصر صاحب کے جو برخوردار ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں اسامہ ناصر بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اسامہ ناصر صاحب اور
डॉक्टर नासिर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबा, थैंक यू, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। सबा बेग आपने नाम बताया। तो जनाब, जितने जल्दी और जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स मेरी निगाहों के सामने होंगे, उतना ही जल्दी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब आप तक पहुंचाता चला जाऊंगा। अवैस, जरा मुझे बताइएगा, क्या ये लाइव वीडियो सेशन अभी भी जारी और सारी है या रुक चुका है? चल रहा है मेरे ख्याल में। अब ये वाला शॉट भी अवैस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शॉट बनाया है ये वाला। दिस इज अनदर गुड शॉट। चलता रहे ना, कोई मसला तो नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? पक्की बात है। चाय पिलाएंगे ना? मतलब चाय नहीं पी यार आज, आप गायब हो गए हैं, चले गए। अवैस दरवाजे के पीछे से ना मुझे झांक रहे हैं, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना कि मैं ये वाला कैमरा फॉलो करूं या ये वाला कैमरा फॉलो करूं। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल जो मास्टर शॉट है ना, मास्टर शॉट वाला, ये बिल्कुल सामने वाला कैमरा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत मुनासिब लग रहा है। अच्छा, बार बार झांक के जा रहे हैं कि कहीं मैं चाय की फरमाइश ना कर दूं, कहीं मैं किसी कहवे की फरमाइश ना कर दूं, हालांकि टाइम बहुत कम बचा है इस वक्त तक। तो जनाब, जल्दी से बढ़ते हैं आप लोगों की चंद मजीद लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए, कौन है हमारे साथ? जी, मेरा नाम राणा सज्जाद है, मैं जिला रहीम यार खान तहसील सादिकाबाद से बात कर रहा हूँ। राणा सज्जाद साहब, तुसा सही साथ का बात उगाल करें पे सही। जी सही। वाह सही, वाह कमाल थी गया। राणा साहब, क्या हालात हैं साथ का बाद मौसम की में ए ते सा को दसाओ? बाहर मौसम बहार है फरीदी साहब। मेरे को एक गाल ए दसा तो सराय की बोल गिंदे ना तोड़े आसे दुश्वारी थी कहनी सराय की बोलने च ना कोई दुश्वारी को नहीं है, थोड़े इतना ई साइड दी है, सारी साइड थोड़ी सराइकी जेकी ना डिफरेंट है, क्योंकि अपर पंजाब भावलपुर वाली साइड दी थोड़ी सराइकी चेंज है। हिको जी सराइकी है सही, दूहा नवाबा दे शहर हैं तो की में अलग थी सकदे, थोड़ा जिहा में एक्सेंट दा 20 किलोमीटर दे बाद फर्क आवेंदे दुनिया च ते बरल क्या करें दे वैसे साथ का बात है थोड़ी मसरूफियत क्या रहेंगी? छोटा जा कारखाना है अपना टफ टाइल दा। माशाल्लाह सही, माशाल्लाह। टफ टाइल केड़े जिहड़ी छियास होंदी है ना सही, ए जेकी पेट्रोल पंपिंग ते लगदी है, टाउन वगैरह ते लगदी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ते बिया सही क्या पैगाम है सुनने वास्ते? एक शेर सही में कोई याद आंदा ते बचपन पढ़दे से। कितना बड़ा शेर है? बस ये दो ट्रैफिक रे सुनाओ सही, बिस्मिल्लाह करो। जिस दौर पे नाता ये दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। वाह। जिस दौर पे नाता थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। वाह। दुनिया की कहानी याद रही, अपना अफसाना भूल गए। क्या बात है। अगयार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी चुके। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अगयार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी चुके। क्या बात। दुनिया को मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल चुके। बातिल को मिटाना भूल गए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक रिक्वेस्ट है जनाब को, जल्दी से बता दें, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं इसको पूरा कर सकूं जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो। तो स्टार के बारे जानना चाहना था। 1993 दी पैदाइश सोना तक दसें दिन तुसा प्रोग्राम सुनते रहो, तुसा दिल दे अफसाना जेड़े प्रोग्राम है हिंदे नाल तुसा जुड़े रहो, असां ताको हर शय ताको दसेंदे रहो, ठीक है सही। राणा साहब जनाब हमें कॉल कर रहे थे सादिकाबाद से। बढ़ते हैं एक और कॉलर की जानिब। यहाँ तो जनाब मेरे ख्याल में शायद, अच्छा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इधर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? कहाँ से कॉल किया आपने? मैं सर रहीम यार खान से फजल हादी। फजल हादी साहब, सोना क्या हाल है? नचते रहीम यार खान साथ का बातों सारे प्रोग्राम में कॉल आम दे पेन सही। जी सर। मैं कसी अचते छा गए सही रहीम यार खान ले लोग। हाँ? क्या कहेंगे फजल हादी, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बस अच्छा, मेरा ख्याल में कि आपकी जो लाइंस हैं, टेलीफोन लाइंस, उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इकबाल बात कर रहा हूँ हैदराबाद से ना। जी इकबाल साहब, आपने हैदराबाद से कॉल की। हैदराबाद का मौसम कैसा है? मतलब बारिश हो रही है या गर्म मौसम है? दिन को गर्म मौसम होता है, रात को ठंडा हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे एक बात बताइए इकबाल साहब, हैदराबाद की चूड़ियां बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर में
हैदराबाद में जो खास तौर पे एक इंडस्ट्री है कांच की चूड़ियों की, वो बहुत मशहूर है। तो ये हैदराबाद का वो कौन सा मकाम है जहाँ पे ये चूड़ियाँ बनती हैं? कोई एक फैक्ट्री में बनती हैं या बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहाँ पे ये चूड़ियाँ बनती हैं? मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में बनती रहती है। अच्छा, तो ये लतीफाबाद का इलाका लगता है सारा जहाँ ये चूड़ियाँ बनती हैं? ज्यादातर बिल्कुल इसी तरह ही है। माशाल्लाह। तो मतलब अगर आप कभी आपका इत्तेफाक हुआ ये फैक्ट्री देखने का? नहीं भाई, कभी इस तरह मौका नहीं मिला है। जी जी बिल्कुल। मतलब कभी आपको मौका नहीं मिला? जी जी बिल्कुल। चले, हम हैदराबाद आएंगे ना तो आपने हमें ये जो मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें हैं वो आपने मुझे दिखानी है ज़रूर। जी इंशाल्लाह बिल्कुल भाई, कभी आओ, चक्कर लगाओ। ज़रूर लगाएंगे जनाब। क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम सुनने वालों को? तो मेरी तरफ से पाक फौज का सलाम दे रहा हूँ, जितने भी भाई है दिफा पे लगे हुए सुन रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से सलाम। जनाब आपकी तरफ से उन सबको सलाम पहुंच चुका है। थैंक यू वेरी मच। इकबाल हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, सैयद अख्तर जी साहब। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वाला, अपना नाम तो बताइए, कौन है हमारे साथ? बड़ी बड़ी जी, मैंने शेख खमोश कहते हैं, इससे बड़े प्यार नाल कहते। दोबारा नाम बताएं। जी मैंने शेख खमोश कहते ने ते बड़े प्यार नाल कहते। तानू शेख खमोश कहते ने, बड़े प्यार नाल कहते ने? हाँ जी, बड़े प्यार नाल तो लाहौरों गल कर रहा। बड़ी हिम्मत है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, ते पीर साहब बड़ी ख्वाहिश ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। जनाब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ जनाब। ਤੁਹਾਡੀ नजर एक शेर। बिस्मिल्लाह। एक आंख हंसती है, एक आंख रोती है। एक आंख हंसती है, तेरे आने पर। एक आंख हंसती है और एक आंख रोती है। वाह। एक तेरे आने पर और एक तेरे जाने पर। और एक तेरे जाने पर। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਬੀ ਡੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਸੁਣਦਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। बिल्कुल जी, ठीक। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शेख साहब। कहाँ से मौजूद थे? लाहौर से मौजूद थे। आपके और हमारे दरमियान राब्ते का जो नंबर है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वो इस वक्त आप लाइव वीडियो सेशन में बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 11111894 आपके और हमारे दरमियान जो राब्ते का नंबर है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, अगर आप ये शिकवा और शिकायत कर रहे हैं कि आपका नंबर नहीं मिल रहा, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या आप 051 यानी कि 051 पहले मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे। सबसे पहले आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से कॉल कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में 051 यानी कि 051 आप पहले मिलाते हैं और उसके बाद 111 111 894 आपके और हमारे दरमियान राब्ते का नंबर है। तो जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा और ये भी आप लोगों के लिए है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अवैस मेरा ख्याल है कि इसी कैमरे पर रहेंगे क्योंकि मैं कलाम प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं और ये आप तमाम सुनने वालों की पुरजोर फरमाइश पे ये कलाम जो है हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाने लगे हैं और आई होप कि हमेशा की तरह आपको ये आज भी अच्छा लगेगा। जरा सुनिए फिर बताइएगा कैसा है। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है, मुझे हर रोज कहती है बताओ कुछ नया लिखा। मैं जब भी उससे कहता हूं कि हां एक नज्म लिखी है मगर उन्वान देना है, बहुत बेचैन होती है, बहुत बेचैन होती है। वो कहती है
वो कहती है सुनाओ मैं इसे एक अच्छा सा उन्वान देती हूं। वो कहती है सुनाओ मैं इसे एक अच्छा सा उन्वान देती हूं। वो मेरी नज्म सुनती है और उसकी बोलती आंखें किसी मिसरे किसी तशबीह पर यूं मुस्कुराती हैं। एक बात बताऊं आपको, किसी को कहेंगे तो नहीं, मुझे लफ्जों से किरणें फूटती महसूस होती हैं। वो मेरी नज्म को एक अच्छा सा उन्वान देती है और उसके आखिरी मिसरे के नीचे एक अदाए बेनियाजी से वो अपना नाम लिखती है। मैं कहता हूं सुनो ये नज्म मेरी है, तो फिर तुमने क्यों अपने नाम से मंसूब कर ली है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखें मुस्कुराती हैं। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखें मुस्कुराती हैं। वो कहती है बड़ा सादा सा रिश्ता है, बड़ा सादा सा रिश्ता है कि जैसे तुम मेरे हो इस तरह ये नज्म मेरी है। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है। बताओ कुछ नया लिखा। आपको और हमारा रिश्ता भी बहुत सादा सा है। आप मुझे कमेंट्स करते हैं, आप मुझे देखते हैं, आप मेरे से प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप मुझे लाइव टेलीफोन कॉल्स करते हैं। वक्त कम है, यकीन मानिए मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल में एक कॉलर ले लें प्रोग्राम में। क्यों अवैध साहब, इनसे अवैध से ना मुझे बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। ये कौन है जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अरे भाई कोई है हमारे साथ। मैंने तो देखें भरपूर कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कि आप लोगों से मैं बात कर सकूं, अगर आप लोग मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम जरा जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मैं पाक आर्मी का जान मीराना बात कर रहा हूँ फ्राम पनोतल से, और आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत मजा आ रहा था। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। खत्म हो रही है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, हमेशा खुश रहे, इसी तरह लंबी जिंदगी दे और इसी तरह आपका प्रोग्राम चलता रहे। नवीद आप इस कौम के जाबाज बेटे और नबील राना। जी नबील साहब आप हमारे जाबाज बेटे हैं, बहादुर सपूत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जागते हैं तो ये कौम सुकून से सोती है। आपके लिए ढेरों दुआएं, ढेरा सलाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। लीजिए जनाब, माइक्रोफोन के जानिब से भी और कैमरे के इस तरफ से भी, इन दोनों तरफ से अपने मेज़बान नवाज़े पाकिस्तान अत्तर रिजवी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा कि आप लोग जहां रहेंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहेंगे। वो अक्सर मैं कहा करता हूं ना कि अगर सांसें रहीं साथ और इस नन्ही मुन्नी और छोटी सी जिंदगानी ने एक मरतबा दोबारा वफा की, तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आइंदा आने वाले हफ्तों माहों साल इसी तरह आपसे रहेगी मुलाकात। वो क्या कहता हूं मैं अक्सर आप लोगों को कि हयात बाकी, मुलाकात बाकी, जिंदगी रही तो हर बात बाकी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय। अपनी खास दुआओं में मेरा नाम लेकर मुझे जरूर याद रखिएगा। मैं हूं सैयद अत्तर रिजवी, आपसे चाहूंगा इजाजत उसी नारे के साथ जो अक्सर मैं बुलंद किया करता हूं, सुपुर्दे 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 मौला।